work and the values and remaining within family is such strong that only they can take advantage of today's time. तो ये हमारी हो गई तीसरी proposition. Explosion of opportunities. Our companies can be the best taking advantage. Family businesses are the best place within that. And now comes the sad part, that is the fourth part, is that most of the family businesses will not be able to take that advantage. The reason is they succeeded in the past and they are still living in the past. जिस तरह से हम लोग सीखे ऊपर पहुंचे, हम लोग वही तरीके को फाइनल समझते हैं और पैराडाइम चेंज हो गया, अभी काम करने का तरीका बदल गया, तो वो जो तैयारी होनी चाहिए बदलने की वो नहीं है। बाजार में काम करते हैं हम लोग तो बोलते हैं हमारा धंधा बेकार है, हमारे सब कॉम्पिटिटर बोलते हैं अभी धंधे में कुछ नहीं रहा, हमारे सब कस्टमर बोलते हैं धंधे में कुछ नहीं रहा, हमारे सब सप्लायर बोलते हैं धंधे में कुछ नहीं रहा, हम तो चारों ओर घेरे हुए वही प्रोपेगेंडा से कि धंधे में कुछ नहीं रहा। We need to come out and look at what best we can do. This is somehow not happening. And then we get to a problem where from nothing today we are rich, and because we are rich, many things start creating an issue. We have one of the industrialists in India, which once upon a time, it was a very big group, and then that group went through a problem. Friends, let me share with you my own experience in our DCM was a company started by my grandfather in 1889, not in the last century, but in the century before that. As long as he was a leader and patriarch, the company did well and prospered. The early signs of stress and tension became evident in the second generation itself, as my father, the elder brother, and my uncle had differing views on how to manage the company. Added to that was the fact that the third generation had entered the business in the 1950s, and even within this generation, there was an age differential of 20 years between family members. And you can imagine the kind of different approaches, the different kind of views that a large family already started having. On top of that, each had to be given a meaningful role in the company. Obviously, differences in management style, differing aspirations and vision, coupled with turf issues, started pulling the company apart. Very soon, this started manifesting itself by formation of groups and alliances within the company, with the concomitant pulls and pressures of where investments should flow. Professionals who should have been loyal to the company first became loyal to their masters. Fortunately, before the company would totally degenerate, as it happened in many other well-known groups, including the Sarabhais, the family took a decision to separate out the company. 10 years after the event, there has been a mixed bag of results. Some of the divided groups have done exceedingly well, while others have turned out a mediocre performance. Let us look at a possible scenario and the family decided to bring in a totally professional management to run the company. My belief is that the company would have performed much better and would have been today one of the leading organizations in the country. After all, in the 1960s, the DCM group was amongst the 5th or 6th largest in India. The reason I'm sharing this with you is that I foresee unfolding many family businesses in the next 5 to 10 years. How to manage the family in an even more competitive environment than in the 90s will be the challenge in front of you. In SRF Limited, which came to me as my share in the family separation, I decided that in the very competitive environment that we are going to operate in, we needed to have
what we have to learn, and managing family is also what we have to learn. Now, we don't spend time in managing family part. And we assume that same like marriage, सब लोगों के वहाँ प्रॉब्लम आते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते. Now let's look at it. What happens? One of our students, father was telling me, uncle was telling me, daughter is 14-year-old, son is 12-year-old. They every year go out for vacation. The father calls son and daughter, daughter and son, daughter is there. Where should we go? What should be our budget? You all work out. And whatever you decide is final. So you say this much money, we will take only this much money. And in case money runs short, then whatever it is, we will face it together. 14-year-old daughter, 12-year-old son starts making the budget. Now they have gone to a place. They went to see a nice old structure, very good, looking very good. Now they are walking out and there is a pizza shop. The father says, let's go and have a pizza. And father, mother, daughter started walking. The son is trailing behind. After a few steps he said, there is no budget. Now, what was the father doing with the daughter and son? He was inducting them into business. Inducting in business does not mean that coming to our office and factory, but understand that you have to take decision. Understand that you have to plan many things. Understand that you have to compare actual with budget. Understand that you will have to think of contingencies and execute the thing. This is an induction which we need to pay attention in building our families. Somewhere our previous generation went through a period in which business itself was so tough that we were consumed in the business and we left building of the family to chance. Today in the new paradigm, actually speaking, business people should not go to their office every day at all. The less you go to your office, the better the businesses will run. And learn to manage business with a global perspective and learn to manage the next generation. For us, we are running this program for the last 15 years. It is an MBA program for the sons and daughters of business families. We believe that a normal MBA is not useful for people who want to get into their business. There are 4 reasons. In a normal MBA, any student coming out of our college aspires straight away for a starting salary of 15 lakh rupees per year in a business. The same person, when he goes to his business, he sees that we are having our account staff to whom we are paying 3 lakh rupees per year. As a trainee, he was aspiring for 15 lakh. In our company, we are paying people 3 lakh. So he develops a thinking. If you give peanuts, you will give monkeys only. So in all our staff in our company, monkeys only. There he learns, you want to sell anything, you must work out budget of advertisement. 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कर दो, आप एक नया पिकल लॉन्च कर दो, 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कर दो, नहीं चला तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ड्रॉप कर देंगे. फैमिली बिजनेस में 5,000 की भी एडवर्टाइजमेंट है ना, तो पहले जवाब देना पड़ता है कि फायदा क्या. स्टेक्स अलग है, वहां पे 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कर दी, सेल नहीं हुआ, आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं चला क्या मिस्टेक हो गई, रिजाइन करके कंपटीशन को ज्वाइन कर दिया. फैमिली बिजनेस में मेरा डिसीजन गलत हुआ तो देयर इज अ होल इन द पॉकेट. अभी मुझे ये कमा के रखना पड़ेगा. आई कैन नॉट लीव एंड गो. इन अ बिग कंपनी यू गो, यू आर सपोज्ड टू सेल टूथपेस्ट, यू कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फॉरगेट अबाउट ये बेचने में प्रॉफिट है या नहीं है. आपको बोला गया बेचो मतलब बेचो. फैमिली बिजनेस में वी हैव टू अंडरस्टैंड पीपल आल्सो एंड मनी आल्सो एंड procurement also and marketing also. Everywhere we have to deal with people who are experts. We have to talk their language, but we cannot be expert in anything. And then there is a big challenge. In a big company, you are given a team and you are supposed to work with them. In family business, we have to hire people who are more capable than us to work under us. Now, it's a very, very difficult situation. Big companies, there are more capable people are my boss, and I'll say yes sir, and doesn't matter what. Here, he is more
capable. He knows how to operate a computer, CNC machine, which is a 5 crore one machine. 1 घंटा डाउन टाइम हो गया, मेरा तो घाटा हो गया. अभी वो जो इंजीनियर चलाता है वो वही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ. उसको मैं 5 लाख का पगार भी देता हूँ, बट आई हैव टू मेक श्योर दैट उसकी अकाउंटेबिलिटी बने. मेरे से ज्यादा कैपेबल लोगों को हायर करना, रिटेन करना और उनके साथ में ग्रो करना, these are the challenges which are very peculiar to family businesses and they require growing in that time. So we have been running this program. It's an 18-month MBA program, sons and daughters of business families coming from all over the country. Last 15 years, personally I have interacted with more than 2,000 businesses. One person came, sir मुझे एडमिशन लेना है. अभी मैंने बोला MBA कॉलेज में है, you should say sir I want admission. तो बोल रहे सर मुझे एडमिशन लेना है, you can't speak English properly. कहाँ से आया? आनंद करके गुजरात में एक छोटी जगह है, वहाँ से आया. कितना सेल है तुम्हारा? 30 लाख है. उस जमाने में हमारी फीस 3 लाख थी. तो मैंने बोला 30 लाख का धंधा है, तुम कमाते क्या हो? तुम हमारी फीस यू कैन नॉट अफोर्ड, तो आई कैन नॉट गिव यू एडमिशन. तो बोलता है सर हमारा धंधा आज छोटा है, उसका मतलब ये है क्या कि वी आर लाइफ टाइम वी हैव टू रिमेन स्मॉल. हम लोगों को बड़े बनने का मौका नहीं मिल सकता है क्या? अभी जब इसने ये बोला तो कुछ सामने ना बोलने का स्कोप ही नहीं था. जब हमने उनको रखा 6 महीने के अंदर, जिनका साल का 30 लाख का बिजनेस था, उसका साल का 30 लाख का प्रॉफिट हो गया. और जब तक कोर्स खत्म हुआ तभी तक साल का 1 करोड़ का प्रॉफिट. The question is not how big or small you are. The question is once you learn the art of exploiting the opportunity, then things are done. हमारे यहाँ पे एक आदमी डिटर्जेंट पाउडर बनाता है, उनका 2000 करोड़ का सेल है. It's bigger than sale of Hindustan Unilever. मुझे फोन पे बोलता है सर ये आपके अपने प्रोग्राम में कितने बिजनेस को, कौन से साइड वाले बिजनेस वाले, क्योंकि हमारा तो 1000 करोड़ से ज्यादा सेल है, मुझे वहां पे क्या सीखने मिलेगा. तभी मैंने उनको पूछा कि आपकी कंपनी किसने चालू की? मुझे हमारे फादर ने चालू की. जरा उनको पूछो जब उन्होंने चालू किया तभी कैसे चालू किया? साइकिल पे घर घर जाके डिटर्जेंट देते. जो आदमी एक दिन साइकिल पे घर घर जाके डिटर्जेंट देता था, आज 2000 करोड़ की कंपनी का मालिक है. अगर आज आपकी क्लास में कोई लोग बैठे हैं जिनका धंधा छोटा है, तो उनको अंडर एस्टिमेट मत करना. They become giants of tomorrow. So what is your background using material? Question is enthusiasm to make it big and managing family together. Managing business and managing family. These two things done well, we all are in a time where there are great opportunities. You tell me a business, over next 5 minutes I can tell you how we can grow in that particular business. The reason is only this, just to get you an idea that once you see the kind of things that are happening, then we have to look at it that why not we? And there we get a big question from all those who have been settled in business for many years. इतना पैसा कमा के क्या करना? दाल रोटी तो खानी है और लास्ट में तो 5 फुट की जगह चाहिए. जो है उसको संभाल के रखो ना, तो भी बहुत ग्रीड नहीं करनी चाहिए. ऐसे ऑडिटोरियम में सब बिजनेसमैन बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप ऐसा बोलोगे, लोग बोलते हैं, फिर मैं उनको बोलता हूँ आप सब लोग झूठ बोलते. आप बोलते हो पैसा कमा के क्या करना है? अभी आपको एक SMS आता है, ये पार्टी को ऑर्डर फाइनलाइज करना है, 1 करोड़ का ऑर्डर है, आधे घंटे में जाना चाहता है, अभी आप आ सकते हो तो कर देंगे. आप क्या करोगे? सब छोड़ के भागोगे. आपको तो पैसा नहीं चाहिए ना, चाहिए तो ना. आपको लगता है ये खट्टे अंगूर है, कहानी आ गई. ये अंगूर मुझे मिलेंगे नहीं, तो मैं पहले से बोलते तो मुझे नहीं चाहिए. हमारा धंधा 10 गुना बढ़ नहीं सकता है, टिकेगा या नहीं वही मुझे डाउट है. 10 गुना बढ़ाने की तो बात ही किधर, उसके लिए मैं बोलता हूं बढ़ाना ही नहीं मुझे. Let's be very clear in today's time, to grow is less risky than to sustain. अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो आपको धंधा चलाना भारी पड़ते ही जाएगा. मार्जिन नीचे आता जाएगा, कॉस्ट
स्लो चलाता है वो कम सेफ है, क्योंकि फास्ट चलाने वाले का पूरा कंसंट्रेशन रास्ते पे है। स्लो चलाने वाला इधर भी देखेगा, उधर भी देखेगा, उधर भी देखेगा और कहीं पीछे वाले गाड़ी मारेगा। So we are living in a time we have to work in terms of growing very fast. Next 10 years are the best period for us. Families, our family strength is the best thing that we have. आपको फास्ट ग्रो करने में क्या चीज होती है? Let's discuss. There is nothing. Everything is just for us, just to walk and conquer. So more or less, this is what is my sharing with you. Now you can have any questions or anything that you like. There is a question. अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है, प्रोग्रेसिव ग्रुप से मेरा ताल्लुक है। ये तो दुरुस्त है कि आप कई फैक्ट्रीज बना सकते हैं, एक फैक्ट्री से यू कैन ग्रो इन मल्टीपल्स। अच्छा, लेकिन विद इन द फैमिली मेम्बर्स जो लोग हैं, नेफ्यूज, ब्रदर्स, उनको आपस में यूनाइट रखने के लिए क्या तरीका किया जाए कि उस लाइक आपने एग्जांपल दी 70 इंडस्ट्रीज़ की, 30 इंडस्ट्रीज़ की, मित्तल की एग्जांपल दी, स्टार्टेड इन अ वेरी हम्बल वे, और निर्मा सोप वाले की एग्जांपल आप अभी दे रहे थे। लेकिन फैमिली को यूनाइट रखने के लिए आप क्या कि ऐसे एवेन्यूज बता सकते हैं? क्योंकि एवरीबॉडी हैज family united. Question number 1. Okay, any other question? थैंक यू। Thank you. You mentioned that in paradigm shift, you have to go to the zero. And like some companies shifting to the paradigm and started a new business. Will it also be going back to zero? Which one? Who started the business? The company which was in loss started a new business. It means it's a paradigm shift for the company. Right. Will it be Of going course, any paradigm will shift. ये जो है ना, ग्रोथ ऐसे होके फिर ऐसे जाता है, जब नीचे गिरे ना उसके पहले स्पीड पकड़ लेता है। तो जो जो एक मंकी होता है ना, बंदर, वो पेड़ से यहाँ जंप करता है, फिर वो जो ब्रांच एकदम नीचे झुकती जाती है ना, तभी पकड़ के ऊपर की ब्रांच पकड़ लेता है। बिजनेस जो डायनेमिक्स होता है ना, वो जो बिजनेस में वो जैसे निकले नीचे जा रहे हैं तभी तक मैं दूसरा पकड़ लेता हूं। तो मेरा सवाल है कि जो फैमिली में मुख्तलिफ भाई काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप लोग कंपनसेशन या सैलरी का क्या किस तरह से कैलकुलेट करते हो? है प्रोसेस? फैमिली में काम करने वाले को सैलरी क्या देनी चाहिए? वेरी गुड। My question is that what responsibility does the previous generation have towards transition and inducting in the next generation? क्या उनको करना चाहिए कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसको अपने ही बिजनेस में लगाना चाहिए, encourage करना चाहिए कि हमारा Fantastic. What responsibility of the earlier generation towards induction of new generation? Very good. कैसे साथ में रखे, क्या पगार दे, क्या किस तरह से इंडक्ट करे? Very good. Thank you very much for your very nice talk. I just would like to know what sort of courses you are doing in your 18 months MBA. What topics or what courses What you are doing topics? in your 18 months MBA? Right. Please enlighten us. Sure. What topics we do in 18-month program? Yes, sir. आ रहा है यहाँ से। जिस तरह इंसान ने कहा था कि फैमिली को यूनाइट करने के लिए होता है, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि फैमिली में 3 बड़े बैठे हैं। हम 3 बड़े को जब हम समझा रहे हैं कि जी आजकल की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, विद इन एन ईयर और 2 दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू चेंज एंड वी विल बी लेफ्ट विद एनीथिंग एल्स, तो आपको अभी से इस पे काम शुरू कर देना है। अबे तू कहाँ से आया, सारा इतना सा बच्चा है, मैंने अपने सामने खड़े होकर बताया, मुझे सिखाएगा तू? This is the problem with Chacha, Taya and these things are going on. How to handle these things, how to convince them. मतलब I have totally given up this thing now. तो मेरा तो दिमाग फट गया, ड्राइंग्स बना के उनको दिखा दिया, उनको विजिबिलिटी बना दी, सब कर दी। I am telling them do it now, I will do it. अगर मैंने तो मर जाना है तो साल में मुझे क्या जरूरत है, मेरे तो इससे गुजारा
ये कस्टमर गधा है, इतनी चीज नहीं समझता है। वो गधा है तो गधा है, उसको समझाना मेरा काम है। मेरा आदमी जाके उसको कस्टमर को मार देता है, कस्टमर ना बोलता है कि मेरा आदमी वापस जाता है तो मैं बोलता मैं आता हूँ। उनसे ऑर्डर कैसे लेके आना वो मेरा काम है। अगर सिंपल ऑर्डर मिल जाता तो सब लोगों को ऑर्डर मिलता, फिर मेरी कोई जरूरत नहीं थी। अगर ना बोलने वाला कस्टमर कल हाँ बोलता है, ना बोलने वाला बैंकर अगर कल पैसा देता है, तो ना बोलने वाले अपने घर के लोगों से कल कैसे हाँ करवानी वो अपने पर है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आप कभी वो कस्टमर को गधा नहीं कहते, आप कभी वो बैंकर को गधा नहीं कहते, आप बोलते कि उसको समझाना पड़ेगा, लेकिन आपके घर वाले को आप गधा कहते हैं। You give it up instead of understanding what is going on in their mind, you try to tell them what is going on in your mind. जबकि कस्टमर के लिए आप बताते हो आपको ये करने में क्या क्या फायदा। The question is, these people, elder generation, have grown up in a particular way. To deal with them, we must first understand how they have grown up. What are their aspirations? What are their fears? What are their reservations? And we have to deal with them. And it's not an overnight. ऐसा नहीं कि अभी एक प्रिस्क्रिप्शन मिल गया, गोली खा ली, काम हो गया। It's a managing process. But managing family members is one of the most important thing in family business. Otherwise, we may have any prosperity outside, घर में तो पे नहीं देंगे। Is a very important question. But if we can manage the toughest of the customer, if we can make toughest of the lender, if we can manage toughest of the government officers, how to manage family members has to be dependent on us, and we know also how to do it. Only thing is, there we don't give up, here we give up. There we don't expect that they should understand us. We go 10 times doing it. Here we expect these people should listen to me. हमारे जो expectation है बाहर वाले से अलग है, घर वाले से अलग है। दुनिया पूरी मेरी तारीफ करती, मेरे घर वाले नहीं समझते। हनी, Yeah, I wanted to ask a slightly mention about salary. In Pakistan, I think, and probably in India, you have a similar situation. A lot of businesses, when the elder brother joins the father's business and it's running all right, and then the second or the third, son is left outside the country, working somewhere in the US or anywhere in the world, and he's quite successful there and he doesn't want to come back, and family says, fine, business is running okay. How do you compensate a son who has inherent part in the family's business? At the same time, the guy who is devoting here, he says, look, if I get out of business today, the business fails, I go out and apply, I get no credibility in the market because I was running my own business and now even that is failed. Whereas the other guy, my brother, he's working for X company and he goes out and applies for another job and he gets it because he has a good record. So that's where how do you compensate the one दो who is- भाई हैं, एक बाहर काम करता है, एक धंधे में काम करता है। इनहेरिटेंस तो दोनों को बराबर ही का मिलेगा। तो जिसने बाहर काम किया उसने बाहर कमाया, वो मेरा, और इनहेरिटेंस भी मेरा। और जिसने पूरी जान लगा दी उसमें, उसको भी उतना ही मिला। तो वो बोलता है कि मैंने जो इसमें इतना जान लगा उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन क्या है। ये सवाल, फंटास्टिक, गुड क्वेश्चन। यस, एनी अदर क्वेश्चन? जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो भाई ने एक सवाल किया कि इंडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन इनटू द बिजनेस, उसमें एक आजकल का एक कॉन्सेप्ट ये है कि यू डू नॉट आस्क देम टू जॉइन योर ओन बिजनेस, यू सेंड देम टू सम बिगर कंपनीज एंड देन टेल देम टू जॉइन यू बैक। वो आपने कहा ये IBA, MBA, ये जो होता है इसमें सीख लिया वहाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आके वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। एक तो इस पर थोड़ी सी आप एनलाइटन करें हमें। सेकेंडली ये कि what happens in the expansion of business, that the younger member or any other member of the group comes with an idea, comes with a proposal, और उसका कहना वाह ये मैंने कल ये प्रोजेक्ट लाया हूँ, दूसरे हैं उसको वो कहते हैं रूल आउट करते हैं उसको, नो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, यू विल नॉट मेक सक्सेस, और ये रिपीटेडली एट टाइम्स इट हैपेंस। हाउ टू कन्विंस, हाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग? हमारे एक स्टूडेंट ने आइडिया लेके आया, सर बॉम्बे में इतना ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, ऑक्सीजन बार बनाना है। हर 2 किलोमीटर पे अपनी एक बार होगी। लोगों को बोलना है हफ्ते में खाली आधा घंटा ऑक्सीजन बार में बैठो, 200 रुपया लगेगा, 20 मिनट, ऊपर पाइपलाइन होगी, उसमें ऑक्सीजन फ्लो होता होगा। once twice in a week ऑक्सीजन बार में बैठ के, you will have enough oxygen,
बॉम्बे में बहुत चलेगा। लड़के को बहुत आइडिया आ गया, इतना एक्साइटेड है, घर पे जाके फादर को बोलता है और फादर उसको जवाब देता है। शब्द एक ही है लेकिन किस तरह से बोलते हैं उसमें बच्चा लड़का समझ जाता है। फादर बोलता है वेरी गुड, लड़का समझ गया इसका मतलब। Now if people come with brilliant idea how to deal with them, it's not how to deal with them, how to deal, because whatever way you deal, they are going to get frustrated. एक बार, दो बार, तीन बार, पूरी रात उसको नींद नहीं आती है, मैंने किया क्या, ये सब तो मेरे फादर ने किया हुआ है, मेरा तो कोई आइडिया काम नहीं आ रहा है, मैं जिंदगी में क्या काम था, इससे अच्छा तो मर जाऊं। And I tell you, the young people in families go through this kind of turmoil. उनको कोई समझने वाला नहीं, उसके अंदर जो मेंटल वॉर चल रही है उसको समझने वाला कोई नहीं है। And the idea is to understand that and support it. It's a very very delicate thing. We are just living it on his own and time heals. 5-6 साल में फिर सब लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर साथ में काम करना चालू होता है। बट ये 5-6 साल का पीरियड है ना, इज द मोस्ट पेनफुल पीरियड इन माय ओपिनियन। जो हमारे एफएमबी के स्टूडेंट है 23 से 29 years of age is the entire painful period for the entire family. Father और son में टेंशन है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, मदर के थ्रू बात होती है, मदर ऑल्सो कैन नॉट हैंडल, फादर अंदर आता है, सन बाहर जाता है, सन अंदर आता है, फादर बाहर जाता है, 6-7 साल ये टेंशन रहता है। Then they realize to accept each other. जैसे पहले 5 साल मैरिज में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, फिर वो सीख जाते हैं जैसे चला फैमिली भी चला लो ना जाता है तभी आता है। The question is about expectations. Somewhere we have so much of expectations which are hidden. We don't tell. And managing this process is extremely important and be very clear. There is no one answer. ऐसा नहीं कि आपने सवाल पूछा मैंने आंसर दे दिया काम खत्म हो गया। Every one of us are equally intelligent and if at all I am less intelligent than you. The only thing is मैंने उनसे सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपसे सुना है वो मैं उनको बताता हूँ, तो मैं तो खाली कैरियर हूँ। But I can tell you, we have to keep our idea open कि ऐसा सिचुएशन तो आती है and how people are differently handling, और जिसने जो हैंडल किया उसका क्या एडवांटेज हुआ क्या डिसएडवांटेज हुआ। आज का अपना प्रॉब्लम क्या है, ये सब्जेक्ट इज नॉट डिस्कसेबल एट ऑल। फैमिली को किस तरह से हैंडल करना, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन इज नॉट अलाउड। हाँ जी बताइए। अभी सवाल के जवाब नहीं क्या चीज नहीं आऊंगा सर, आपके हर सॉल्यूशन पे आऊंगा, लेकिन ऐसा गोली मारूंगा कि आपको जवाब भी नहीं मिलेगा लेकिन आप सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे। हाँ जी आपको ज्यादा अंदर फैमिली बिजनेसेस में इंटरैक्टेड विद ऑलमोस्ट एज यू सेड 2000 businesses, what are the usual ones apart from frustration, compensation, और क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या जनरली आते हैं? ये कम है कोई बात What if you pass these? कोई बात नहीं एक मिनट ना सर, उनके पास में माइक है फिर आपके पास आ जाए। My question is that you've mentioned a lot about learning and implementing. We are discussing so much about managing current existing businesses. Now, if someone wants to start off a family-run business, how would that be done? What are the factors to be considered as well? Because considering the current economic times, आप तो फैमिली बिजनेस मैनेज करने की बात करते हो, लेकिन किसी को नया बिजनेस चालू करना चाहना है, and उसके साथ साथ currently the economic times are such कि लोग सोचते हैं ideas आते हैं and then that's it, they vanish. We don't execute them, हम उनके execution की तरफ जा ही नहीं पाते हैं. Considering the economic times, so what की बीमारी क्या है, अगर सब लोग जिनका जितना आइडिया है सब इम्प्लीमेंट करें तो 10 लाइफ टाइम में कम पड़ेगी। आइडिया का काम ही नहीं आगे जाने का, सब आइडिया की इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं करनी। पूरे सालों में एक आइडिया काम होता है, हजारों आइडिया आगे जाते हैं, लेकिन एक आइडिया पे काम होता है, वो एक आइडिया कहाँ से कहाँ पहुंचाता है। So it's not so much important how many ideas you get. Importance is execution. That is what is important. Okay, let's see, आप जरा माइक को दे दीजिए। हाँ जी, एक मिनट, यहाँ से वापस हम आ जाएगा। फैमिली डायनामिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आप देखते हैं कि
मेरा बेटा अगर शादी करता है तो एक लड़की घर में आती है, मेरी बेटियां जब उनकी शादी हो जाएगी वो कहीं और चली जाती है, तो उस जो इन लॉज के कल्चर हैं वो डिफरेंट होंगे। तो एक तो ये पॉइंट है, दूसरा ये कि कुछ बच्चे किसी और शहर में किसी और मुल्क में हैं, तो ये किस तरह मैनेज करेंगे कि वो जो फैमिली बिजनेस है उसमें उनको किस तरह जोड़ा जा सकता है, उसमें कैसे प्रमोट? Two different families coming together, in-laws coming in either of the family, उनको कैसे मैनेज करें? अभी ये लास्ट सवाल, क्योंकि अभी मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप कर दीजिए लास्ट सवाल, मतलब लास्ट 4-5 सवाल, नो प्रॉब्लम, जवाब तो दे दो। हाँ जवाब नहीं, फिर वो टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद। आप सवाल दे दीजिए। मुझे 2 बातें पूछनी है, जिसमें से एक मेरे फैमिली बिजनेस में होता क्या है कि ठीक है, भाई काम कर रहा है, भतीजा काम कर रहा है, बेटा काम कर रहा है, सारी चीज़ें सब चलती रहती है, फैमिली बिजनेस सेट है। नया बच्चा आता है, वो काम करता है, उसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाता है वो, फिर दूसरा बच्चा आता है या भतीजा आया, उसने उसको आगे बढ़ाया। देखा ये जाता है कि आमतौर पर जो रिलैक्सेशन आ जाती है कि ठीक है, काम वर्किंग आवर्स कम काम कर रहा है वो, कि ठीक है यार मेरा साइड बिजनेस है, ठीक है मैंने बंदे रखे हुए हैं, वो काम करने जा रहे हैं, मैं कस्टमर के पास खुद नहीं जा रहा है, मुझे जरूरत पड़ी जाने की, मैं 11 बजे आऊँगा, 5 बजे चले जाऊँगा, ठीक है मैं। उसके लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन आप समझते हैं किस तरह से हो सकता है कि ताकि वो एक तो सही टाइम दे सके, दूसरा ये कि वो बिजनेस को ग्रो कर सके? एक सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपने कहा कि फैमिली बिजनेस में भाई भतीजे बेटे अंकल सब कुछ होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि लोग जो हैं वो वर्किंग हैंड्स रखते हैं, अपने से बेहतर आदमी रखते हैं जो उस काम को आगे बढ़ा सके। तो क्या ये नेसेसरी है, ये रिक्वायरमेंट है कि आप जो है वर्किंग हैंड्स के बगैर ना कुछ भी नहीं कर सकते? आपको जब बिजनेस ग्रो करना है तो आपको वर्किंग हैंड्स चाहिए काम करने के, जैसे कि आप आउटसोर्सिंग में मैनेजर रखिए, सेल्स रखिए। तो ये 2 सवाल है मेरे आपसे। फैंटास्टिक, वेरी गुड। पीछे हाँ। How do you motivate family members to take initiative? Because generally you didn't feel that you know. साहब भी वही बोल रहे हैं ना, उनको काम करने के लिए कैसे बोले कि पहले सुबह में मेरे फादर कंप्लेन करते हैं कि ये लोग 8 बजे के पहले तो उठते नहीं है, आदमी धंधा क्या करेगा? My question is more like, if the rewards are the same, and it's more like a security or like an insurance policy when you work in a family business, सबको equal मिलेगा ऐसा, and the way it's split up, it's based more on the hierarchy rather than what you drive in. So मेरा motivation क्या है? Because if I know at the end of the day, my compensation is going to be based on more of a family security. Fantastic. हो गया? अभी देखिए, मेरा अच्छा आता और एक सवाल। मैं कुछ सवाल है ना ऐसा विश करता हूँ, Probably the last one, but not the least. नहीं पूछे, ऐसे कुछ सवाल विश करता हूँ, उसके लिए मैं डरता हूँ, वही कोई सवाल पूछ लिया तो मेरा पूरा प्लान छोड़ जाएगा। Probably the last one, but not the least. What is your recipe for bringing that paradigm shift? मैं वही सोच रहा था कि आप नहीं पूछे। ये देखिए, अभी तक जो भी सवाल पूछे, क्या सवाल पूछे? मुझे यहाँ दर्द कर रहा है, 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 इसका इलाज क्या है ना? प्रॉब्लम के ऊपर हमने बात की, और हमारा नजरिया हमेशा प्रॉब्लम के ऊपर होता है। और एक चीज समझिए, आप चाहे कितना भी जान लगा देंगे, प्रॉब्लम जीरो नहीं कर पाएंगे। लाइफ में प्रोग्रेस होता है अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करते हुए। प्रॉब्लम सॉल्व करके आदमी कहां पे भी नहीं जा सकता है। आप आपका खुद का ग्रोथ देखिए, आपके ऑफिस में इतने सारे प्रॉब्लम है, आप रोज प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, कुछ नहीं होता है। एक दिन बैठा है, किसी ने बोला ये कोलैबोरेशन कर सकते, ये कर सकते, बढ़ गए तो नई कंपनी चालू हो गई। लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। फैमिली बिजनेस पीपल लव प्रॉब्लम्स, और इसके लिए एक बेस्ट रेसिपी है। जब भी कोई फैमिली बिजनेस वाला फैमिली रिलेटेड सवाल पूछे, उसको कभी भी जवाब नहीं दे, क्योंकि आप जो भी जवाब दोगे वो सेटिस्फाई कभी नहीं होगा। बिकॉज अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो प्रॉब्लम, तो फिर क्या बोलेंगे? जैसे मैं इनको बोलूंगा सैलरी ऐसी ऐसी होनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यस, लेकिन जब ऐसा हो तो क्या करेंगे? जब इनको मैं बता दूंगा कि ऐसा ऐसे बोलना चाहिए, वो बोलेंगे मैं तो ये कर चुका, ऐसा भी नहीं होता है। फैमिली रिलेटेड, प्रॉब्लम रिलेटेड आपको भी कोई भी सवाल पूछे, best thing is never try to give one short answer, because in life there is nothing called one short answer. Let us work together, let us think together, and first and foremost you have to think of yourself
that why are you so much obsessed with the problems and are not talking about opportunity? Why not a single question came about how to acquire a company in Germany? Why not a single question came about how to grow 10 times in 2 years? Because for us, we say, ये सब बात तो ठीक है, मेरे आज के प्रॉब्लम देखो। मैंने ये सब बताया, बाहर जाके बोलेंगे, ये सब बात तो सब बराबर है, लेकिन कराची में बैठ के ये सब अपने यहाँ ढंग के आदमी काम है। इसको बोला जाता है गेम्स पीपल प्ले, इज कॉल्ड यस बट गेम। सब कुछ बोलो बट हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। मुझे बोलते हैं भाई आप कंसल्टिंग ले आओ। अच्छा आपने कौन सी इंडस्ट्री में कंसल्टिंग की? मैं 15 इंडस्ट्री का नाम बोलता हूँ। अच्छा वहाँ सब काम होता है। हमारा बिजनेस ऐसा यूनिक है कि हमारे यहाँ के काम है। और इसका मैं आपको लास्ट फाइनल पॉइंट बताऊँ, इसको बोलते हैं मेंटल स्टेट। जब हम लोग काम चालू करते हैं तो वी हैव अ फर्स्ट मेंटल स्टेट। कुछ भी सुना पॉसिबल नहीं है। ये सब एक्सपेंशन नॉट पॉसिबल, टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी नॉट पॉसिबल। और हमारे पास में 10 रीजन क्यों पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मेंटल स्टेट, इज कॉल्ड डिफ्यूज वाइटलिटी। अवर एंटायर एनर्जी इज डिफ्यूज्ड इन सॉल्विंग वन प्रॉब्लम और अनदर, एंड कब दिन खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। और हम अपने आप को बहुत प्राउडली कहते हैं आज के काम में से मरने की फुर्सत नहीं है, तो कल की कब सोचेंगे। is a big achievement of our life that we have successfully managed to get ourselves lost in today's problem. Really speaking, it is one of our biggest failures. And this prevents our अपने आंखों के ऊपर इतने बड़े-बड़े पर्दे लगे हुए हैं कि हमको एक प्रॉब्लम इतना मैग्नीफाइड लगता है। अभी क्या होता है, कब हमारे जैसे ऐसे भाषण में आ जाते हैं और हमारी आवाज बड़ी रहती है। मेरे पास में माइक है, आपके पास में माइक नहीं है। मैं स्टेज पे हूँ, मैं इधर से इधर घूम सकता हूँ, आप वहाँ से खड़े नहीं हो सकते। मेरे पास में पावर है और मैं इतना जोर से बोलता हूँ तो आपको एक बार तो आ जाता है, शायद हो सकता है। सोचना चाहिए ऐसा, कुछ करना चाहिए ऐसा। इसको बोलते हैं मेंटल स्टेट ऑफ डाउट। ये कब तक रहता है? जब तक यहाँ बैठे। जैसे बाहर जाके ना नॉर्मल कराची की हवा लगती है ना, हम वापस घर पे आ जाते हैं। ये सब अच्छी बात है, कभी कुछ करना चाहिए। उनका कुछ अगला सेमिनार होगा ना, 3-4 दिन का सेमिनार होगा, जाके देखेंगे, शायद कुछ आइडिया मिल जाए। लेकिन अभी तो लाइफ इज एज यूजुअल। इसको मेंटल स्टेट डाउट बोलते हैं। लिटिल बेटर देन नो बट गोइंग बैक टू नो। ये दोनों मेंटल स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ द आदमी लोग मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। डिफ्यूज वाइटलिटी, पूरी एनर्जी इधर उधर बिखरी हुई रहती है। देन कम्स द नेक्स्ट मेंटल स्टेट, लाइन है, डाउट और ऊपर सर्च, उसके बीच में एक लाइन है। ये लाइन बोलते हैं बिलो ग्राउंड लेवल। जब आप बिलो ग्राउंड लेवल हो तो कितने गहरे हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिलो ग्राउंड मतलब बिलो ग्राउंड। अगर आप डाउट की माइंडसेट में हो या नो की माइंडसेट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं नहीं जा सकते। जिस दिन आपने ये लाइन तोड़ी और ऊपर गए तो सर्च की सिचुएशन पे आए। और जब सर्च की सिचुएशन पे आए तो आदमी बोलता है कि मुझे तो आंसर चाहिए। कहाँ मिलेगा? लंदन में एक जगह पे मिलता है, मैं जाता हूँ लंदन, यहाँ पे ये बुक में मिलता है, मैं पढ़ता हूँ बुक। वो आदमी ने कुछ किया, वहां जाके पूछता हूँ। जिस दिन आदमी ये सर्च के मोड पे आ जाते हैं तो बहुत एनर्जी निकलती है, अपने आप में बहुत स्कोप बन जाता है। When you are in the mindset of search, और जो आदमी सर्च में है वो अभी नो और डाउट को गोली मारती करना तो है, अभी कैसे करना है वो बताओ। आप मुझे बोलोगे पॉसिबल नहीं है, थैंक यू वेरी मच। आपकी ओपिनियन में पॉसिबल नहीं है, आपकी ओपिनियन आपके पास में रखो। मैं तो ढूंढूंगा
spirit with which all business people which are big today started when they were small. उनके पास में कोई सब बिजनेस तैयार नहीं था, करना है कैसे करेंगे ढूंढते ढूंढते गए तो हुआ. This is what was our real spirit. We somehow over the year got tired and got into the lower spirit. Then comes the next spirit above. So the belief ये होगा, कैसे होगा नहीं मालूम. मेरे घर में 3 भाई है, बहुत लड़ रहे हैं, हम साथ में मिलकर कंपनी बढ़ाएंगे. कैसे बढ़ाएंगे? अभी तो ठिकाना नहीं, इतना लड़ रहे हैं तो लड़ने तो थोड़ा बहुत तो होता रहेगा, लेकिन हमको तो 2 कंपनी एक्वायर करना है. अगर आप 2 कंपनी एक्वायर करोगे, घर में झगड़े क्या होगा? घर में बर्तन है, थोड़े झगड़े होते रहते हैं, लेकिन हमको तो साथ में मिलकर कंपनी एक्वायर करना है. कैसे करोगे पता नहीं है, लेकिन करेंगे जरूर. दिस इज अ बिलीफ. जब बिलीफ होती है ना, वो हमें बहुत बड़ा पावर देती है. आज के हर फैमिली में बिलीफ है कि फैमिली मतलब झगड़ा होने ही वाला है, फैमिली मतलब सैलरी की डिस्प्यूट होने ही वाली है, फैमिली मतलब कॉम्पेंसेशन की बात आने ही वाली है. कोई जरूरी नहीं है. फैमिली में हर आदमी मुझे 1 रुपया ज्यादा मिला उसके लिए लड़ने वाला है, कोई जरूरी नहीं है. ये अपनी बिलीफ सिस्टम एंड बिलीफ सिस्टम चेंज. द क्वेश्चन इज आवर फैमिली when our fathers and grandfathers started business, they didn't start the business with the idea of कि इसके fruit कौन कितना लेके जा रहा है. They did with the idea of how we will grow. And it is when the whole energies are going in growth, then other problems become small. And don't expect that you will grow throughout your life without any illness in your body. कभी कभी illness आती है, कभी कभी बीमारी आती है, कभी कभी झगड़ा होता है, कभी कभी आर्गुमेंट होता है, वो सब होता रहता है, लेकिन नजर है ऊपर जाने की. And then other things start getting aligned. कल तक जो एक दूसरे की जान में लगे थे, today when they realize that this is what we can do, and they will start working on it. If we have to begin with that faith and confidence that our family has tremendous values, we all are committed to grow, and we have that faith. Once that is done, there is a further higher state that is called experience. I know so many families, और कोई family बोले हमारे अंदर झगड़ा नहीं है, वो भी नहीं. झगड़ा होता रहता है. And we know we manage also. And we are growing. And we are growing here and there and there and there and there. That is what is the experience. जब वो लोग वहाँ पे हैं, उनको कोई रुकावट नहीं लगती. उनको आप पूछो आपके घर में प्रॉब्लम नहीं है क्या? अरे होते रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात. आपके यहाँ से आदमी नहीं जाते, जाते हैं आते हैं. आपके यहाँ पे मंदी का प्रॉब्लम नहीं होता है, तेजी मंदी आती रहती है. They take all this thing in their strides. उनमें इतना कॉन्फिडेंस आता है. आप और मैं बराबरी के पार्टनर है, बराबरी के नहीं, आपको 51 लेना है. 1 रुपया देना चाहते हैं, और जो आदमी 1 रुपया देना चाहता है, somehow everybody around that want to give one. अप्रोच है. सैलरी का सवाल कौन पूछता है? मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए ये सोचने वाला पूछता है. जिसको कम मिलने वाली वो तो नहीं पूछने वाला. मैंने काम किया तो मुझे ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिला. आपको सबसे बड़ा कॉम्पेंसेशन ये मिला है कि आपको मौका मिला आपके आइडिया के हिसाब से कंपनी को नेविगेट करने के लिए. वो अमेरिका में बैठा था, उसने पूरा चीज आपके भरोसे पे छोड़ दिया. That itself is a big reward. Now this whole idea has somehow come in our current time, which was not so much few years ago. Few years ago, there was something like a joint family where head of the family would say and everybody will agree. Family is more important than me. And when family is more important than me, so I have to work in family's interest first, my interest second. So as a family, we have to work for growing 10 times. Then let's see, we want to divide now. ठीक है, अपने पास में 5 करोड़ है, आइडिया डिवाइड होगा. ठीक है, काम करते हैं, 5 साल बाद में डिवाइड करेंगे. चलो अभी 5 साल काम कर लेते हैं, 50 करोड़ कर देते हैं, बाद में डिवाइड करेंगे. ये जरूरी नहीं है कि फैमिली हैव टू ब्रेक. फैमिली के बीच में there is a good thing required that everybody should get space. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सबको इंडिपेंडेंस चाहिए. So we have to give space. Don't keep them too close. At the same time, don't keep them too apart. So there are various processes. एक आदमी हमारे स्टूडेंट की शादी हो रही है, उसके फादर लड़की के पूरे फैमिली को बुलाते हैं और अपना पूरा फैमिली 2 दिन के लिए वो लोग हॉलीडे पे जाते हैं. पूरे दिन गेम खेलते ये सब होते हैं.
से वो इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करके जो गेहूँ बने मिले वो बेच के जो भी था वो जीते थे। धीरे धीरे बाजार में बैठते उन्होंने देखा कौन खरीदता है कौन लेता है, उन्होंने दलाली का काम चालू किया। दलाली का काम धीरे धीरे करते हुए उन्होंने देखा कि मैं धंधा चालू कर दूं। उन्होंने एक दुकान भाड़े पे लेकर धंधा चालू किया। धंधा चालू करते करते उनको लगा कि हम इसको और बढ़ा सकते हैं और उन्होंने आटा की एक कंपनी डाली। एक दिन कंपनी में आग लगी, पूरी फैक्ट्री जल गई, सर पे काफी खर्चा हुआ। हमारे दादा ने बोला था जब तक एक एक आदमी का कर्जा नहीं चुकाऊंगा तब तक मेरे खुद के लिए घर नहीं खरीदूंगा। 10 साल तक उन्होंने मेहनत की, एक एक आदमी का कर्जा चुकाया और उस गुडविल के कारण आज हमारी कंपनी का नाम और हमारे घर के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो दादा की मेहनत के कारण हम यहाँ पे पहुंचे, उसको 4 चांद लगा के आगे बढ़ाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं पैदा हुआ हूं ये परिवार में, ये काम में मेरा हाथ बंटवाने के लिए, मुझे क्या मिलेगा ये पूछने के लिए नहीं। तो फैमिली की जो जरूरत है वो हमारे परिवार में फर्स्ट प्रायोरिटी आती है। अभी ये जब लड़की वाले पूरे परिवार वाले भी ये देखते हैं, अपने परिवार को मालूम है कि आज जब जो भी है वो हमारी अकल के कारण नहीं है, हमारे पूर्वजों के त्याग के कारण, उनके सेक्रीफाइस के कारण, उनकी इतनी कड़ी मेहनत के कारण हमारा काम है उसको आगे लेके जाना। कल शादी के बाद में जरूरत पड़ी, चाइना में फैक्ट्री खोली है और एक आदमी को चाइना जाना है, डिसाइड किया ये लड़के को जाना है। उसकी वाइफ बोलती है अरे वो चाइना जाएगी, मुझे चाइना पसंद नहीं, मुझे यहाँ रहना है। वो जाके अपने मायके बात करती है, वहां आपको बोलते चाइना जाना पड़ेगा। मायके वाले उसको समझाते हैं देखा नहीं आपको बोला नहीं था, ये परिवार में फैमिली इज द फर्स्ट, पर्सनल इंटरेस्ट इज सेकंड। ये बीज हमारे घर में डालें। अपने हर परिवार के मेंबर को एक गर्व होना चाहिए कि हम जिस परिवार के हैं, हमारे फादर और ग्रैंडफादर का हमारे पे कर्जा है, हम कुछ भी करें हम वो पूरा नहीं कर सकेंगे। इट इज अवर ड्यूटी टू टेक अवर फैमिलीज नेम फॉरवर्ड। ये जब आती है तो बाकी सब चीज कम हो जाती है। आपने लाख रुपया लिया, मैंने 10,000 कम लिया, कौन सी दुनिया में थे? आपको 50 करोड़ शेयर कर रहे हैं, आपने 20 लिया, मुझे 30 मिला, वो 10 करोड़ लेके मैं कहां जाने वाला हूं? ये जो पूरा माइंडसेट है, जब दिमाग छोटा हो जाता है तो ये सब प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। दिमाग जो बड़े, जो मैंने आपको बताया चंदेरिया फैमिली, 180 फैमिली मेंबर्स वर्किंग टुगेदर with a very clear idea. We are born to create ideas. We have to see how we create wealth, how we create the things. And for this, today is the best time. My humble suggestion to you, you all came with this particular title, family business, with questions that how can we address issues of our family business. My submission to you is, keep them as they are and think about growth. Grow 10 times, these problems are not going to grow 10 times. Somewhere things will start getting alive. And somewhere perhaps you yourself are somewhere in the lower stage where you are not seeing the opportunities available in the world today. I am speaking too much, maybe I am hurting your feelings, but it's better once do something like this. Maybe 2 of you might feel hurt and 10 of you might feel instigated to think in this direction. Our mission is very clear. The future of the society is in family businesses. Our family systems have tremendous rich heritage. Somewhere via West, we have started importing values. मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, ये हमारी परंपरा में, ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल वेस्ट से आया हमारे अंदर तो है। हमने हमारे पिताजी के लिए काम किया, जो किया किया। हमारी परंपरा में त्याग की बात है, वेस्ट की परंपरा में मुझे क्या मिलेगा उसकी बात है। सवाल यह है अपने परिवार की परंपरा को समझना और उसको बढ़ाना। यही तो बेस्ट चीज आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे। अगर ये परंपरा आप नहीं छोड़ोगे तो वेस्ट की इन्फ्लुएंस तो उनको होने ही वाली है। और वेस्ट में फैमिली लाइफ में कुछ सीखने जैसा नहीं। वहाँ पे जिस तरह से लोग फैमिली में जीते हैं उसमें कुछ हमें सीखने की जरूरत नहीं। खाली बीमारी बीमारी। सही चीज जो अपनी ताकत थी, अपनी परंपरा थी,
उसको छोड़ के हम लोग वहां पे जाते हैं अपना त्योहार मनाने के बदले में वैलेंटाइन डे। हमारे त्योहार होते थे वो छोड़ के 31st नाइट की पार्टी सेलिब्रेट करते। हमारे जो भी त्योहार थे वो मतलब है कुछ नहीं, ये सब रिचुअल है। और 31st नाइट की पार्टी में तो बहुत सब चीज है क्योंकि वायरस है। अपनी नेक्स्ट जनरेशन आई कैन गारंटी टू यू दे विल बिकम इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट एंड फॉलो ब्लाइंडली वेस्ट बिकॉज एज इट इज दे आर फीलिंग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। लंदन में चलते हैं, देखो कितनी लाइट है, कितने अच्छे रास्ते हैं। हम कराची में आते हैं, कितना ट्रैफिक है, इससे तो लंदन में रहना अच्छा। ये क्या कोई जीने का तरीका है? बस ये ख्याल आते हैं। जो भी है ये हमारा है और इसको सुधारना हमारा काम। ये गर्व लाना ये अपने family business I will call is the best assurance that the society can have. The influences are going to be driven by business families. Majority of others will be compliant. It is the business families which will grow and use their wealth in terms to help the society to grow. 50 करोड़ में से 30 करोड़ से मैंने मेरी एक मेंशन बनाई, एक चीज है, और उसमें से 10 करोड़ मैंने स्कूल बनाने के लिए, दो अलग चीजें। अपनी परंपरा मेरा घर बड़ा बनाने की कभी नहीं थी, अपनी परंपरा थी सोसाइटी को सपोर्ट। एंड टुडेज टाइम वी आर यूजिंग दिस। वेस्ट टोल्ड देम माय प्राइवेट जेट, माय प्राइवेट yacht, माय प्राइवेट बैग, these are all not the things for us. And this is why I tell you, learn everything from West, learn management from West, learn technology from West. They are brilliant in it, but family values they have to learn from us. 5 उंगली होती है ना, हर उंगली की अपनी अपनी ताकत होती है। दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, हम भी उनमें से एक लोग हैं। चाहे हमारे पास में उनकी जितनी वेल्थ नहीं है, हमारे पास में उनकी जितनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो परंपरा है ना वो हमारी ताकत है। हमारी ताकत को पहचान के उसको ग्रो करना, दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई एम श्योर आई कुड नॉट आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, बट आई एम लीडिंग यू टुवर्ड्स इट। हाँ जी, हाँ बस ये एक्सपीरियंस, जिनको एक्सपीरियंस हो गया। अभी समझिए क्या हुआ कि मैंने, हमारे एक आदमी है ठाकुर करके, उनको ज्योति स्ट्रक्चर करके टावर बनाने की कंपनी है, उनको किसी के साथ में पार्टनरशिप है। जिनके साथ में पार्टनरशिप है वो साइलेंट पार्टनर है, ये सब पूरा काम करते हैं। लेकिन उनका तरीका यह है, मैं किसी के भी साथ में एक ही कंडीशन पे पार्टनरशिप करूंगा, 51% शुड बी योर्स। करूंगा सब में काम, लेकिन 51% आप लेके जाएंगे। अभी जब उन्होंने ये देखा कि ये करने से उनका काम इतना बढ़िया होता है, नो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। द अदर पर्सन, आप बोलते हो 1% आप ज्यादा लो, वो बोलते हैं नहीं नहीं काम आप कर रहे हो 1% आप ज्यादा लो। अभी ये जो लड़ाई है ना वो प्रेम की लड़ाई है, 1% छोड़ने की लड़ाई। आप अपने परिवार में देखिए, जितना देते हैं ना उतना और बढ़ता है। ये इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, ये अपने कहाँ सीखा? Islam, I am not Islam. I tell you, I believe the best religion in the world is Islam, because it is the only religion which taught that if you are rich and powerful, but if people around you are poor, what is the use of your richness? You have to contribute to make them rich. ये जो आप ज़कात की सिस्टम है, which other religion has? It is again a rich inheritance, where the value was be produce the value, produce the wealth. It is only then the society can advance, and then use that wealth for the development of the society. I have come to Pakistan with this particular thing. I can assure you, our entire institute is so excited when we talk about doing it with Pakistan. There was not so much excitement when we say that we are doing it to London or France or anywhere else, as much as in Pakistan. Because somewhere we see so much of similarity, so much of the value, so much of opportunity, so much of doing things together. And we are saying in so many ways. So this is the reason why we here need to join together, work out a common front with reference to waste. Thank you very much. Thank you, Professor. I will now... Professor.